آج کے لیے پھر کہ خداوند نے ہمیں فضل بخشا ہم سب کو کہ ہم ایک بار پھر اکٹھے ہو سکے اور خداوند کی جماعت میں، تاکہ خداوند کے نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت آتی ہے، وہ کہہ میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، آج کی ساری باتوں کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا جو ہمارا مددگار ہے، جو ہماری پناہ، ہماری چٹان ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی، ہر سانس بخشی۔ اس کی مرضی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاللویا ربا ربا سیرا شنت زینا ری بی 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 سیرا شنت زینا را را را۔ آج اس کی حضوری کو، اس کے پاکو کی آگ کو، پاکو کے مسے کو ہم اس جگہ پر مانگ لیتے ہیں، اس کے اینجلز کو مانگ لیتے ہیں، اس کے کروبیوں کو مانگ لیتے ہیں، ہماری حفاظت کرے اور خدا ہماری مدد کرے کیونکہ تمہارا مددگار ہے پاکو، تمہارا مددگار۔ تو ہمیں بتا ہم کس طور پر یہ میٹنگ لیڈ کر سکیں اور کیسے الفاظ ادا کر سکیں۔ خدا پاکو تو ہماری مدد کرنا، تو ہمیں مدد کرنا پاکو۔ ہاللویا ہاللویا ربا ربا سیرا شنت زینا ری بی بی سیرا۔ ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہے پاکو، تو ہمیں بتا پاکو، تو ہماری گائیڈنس ہے پاکو۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں پاکو۔ ہیلپ می ہیلپ می ہیلپ می ہیلپ می پاکو۔ ہاللویا ہاللویا ربا ربا سیرا شنت زینا ری بی 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 سیرا شنت زینا ربا ربا سیرا شنت زینا ری بی 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 سیرا شنت زینا۔ او باپ تیرا شکر کرتے ہیں آج کی ساری میٹنگ کے لیے، تیرا ابھی سے خدا تیری پاک حضوری کو، تیرے پاکو کے مسے کو، تیرے پاکو کی آگ کو مانگ لیتے ہیں، تیرے اینجلس کو مانگ لیتے ہیں اپنے چگے۔ خدا تو ہماری مدد کرنا، ہماری سرایتا کرنا خدا تو ہمیں اپنے پاکو سے آج بھر دینا ہمیں خدا جو بھی ہم آج اپنے دل کی مرادوں کو لے کے آئے تیرے سامنے تو ہر ایک کی دل کی مراد کو آج پوری کر دینا کوئی تیری حضوری سے خدا کوئی خالی ہاتھ نہ جائے خدا یسوع ناسی۔ تو ہی ہے جو ہمارا خدا کا خدا ہے۔ تو نے کہا میں تو اپنے محبوب کو نیند نہیں دے دیتا ہوں۔ ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں خدا۔ تو نے کہا مبارک ہو جو سب لوگ جو مجھ پر توکل کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے جس نے ہماری خاطر اپنا خون بہا دیا، جس نے ہماری خاطر اپنی جان دے دی۔ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ خدا زندہ خداوند ہے۔ ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں، سارا عزت و جلال تیرے نام کو دیتے ہیں میرے باپ۔ تیرا شکر کرتے ہیں ایک ایک جان کے لیے پھر تیری بلیسنگ چاہتی ہے صبح۔ تو بلیس کر اپنے لوگوں کو، بلیس کر خدا اور تمہاری بڑی مدد کرنا۔ جتنے لوگ ابھی تیری حضوری میں نہیں آئے خدا، کوئی بھی کسی قسم کی بھی رکاوٹ ہے تو یسوع کے نام سے ڈانٹ دیتے ہیں، ان ساری رکاوٹوں کو دور کر دے۔ یسوع المسیح ناصری کے نام سے پیچھے ہٹتی جائے اور خدا تیرے لوگ تیری میٹنگ میں آ سکے۔ خدا تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں، تیرے نام کو جلال دے سکے پیارے آسمانی باپ، کیونکہ تو زندہ خداوند ہے، تو پرستش اور ستائش کے لائق ہے خدا۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا اس وقت کے لیے خدا تیرا شکر ہو۔ آج کی ساری پرستش کے لیے تیرا بھی ابھی سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا۔ جو بھی پرستش کرے خدا پاک کو تیری حضوری، تیرا مسا زندگی پر ٹھہر جائے اور خدا ہم پرستش کے وسیلے سے ہم برکت پائے، رہائی پائے، آزاد ہوں۔ فتح مان دو یسوع کے نام سے، کیونکہ خدا تو نے کہا جہاں یسوع آ جاتا ہے وہاں جوئے ٹوٹ جاتے ہیں، بندھن کھل جاتے ہیں، کیونکہ یسوع نام میں قدرت ہے، یسوع نام میں زندگی ہے، یسوع نام میں فتح ہے۔ ہم یسوع کے نام کو پکارتے ہیں۔ ہاللویا ہاللویا ربا ربا سیرا شنت زینا ری بی 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 سیرا، کیونکہ یسوع ہی ہماری زندگی ہے، ہماری نجات دہندہ خدا ہے۔ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کو کیوں نہ مبارک ہے، کیونکہ وہ زندگی ہماری خدا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اسی نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، وہی کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ خدا قدوس، مہربان اور رحم کرنے اور رحیم خدا ہے، وہ ترس کھانے والا خدا باپ ہے۔ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ خدا کے خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری تمجید ہو، ہم تیری ستائش کرتے ہیں پیارے آسمانی باپ۔ اس ساری میٹنگ ایک بار پھر تیرا شکر کرتے ہیں خدا باپ کو، تیرا شکر، تیری تعریف ہو، تیری حمد ہو۔ سب کچھ مانگتے پا لیتے ہیں یسوع کے نام سے۔ ہاللویا ہاللویا ربا سیرا شنت زینا۔ ابھی ہم ہاللویا ربا سیرا شنت زینا۔ آج ہاللویا جی وفا کی ہے، وفا کی ہے۔ اچھا میں دیکھنے لگی تھی۔ ہاں جی میں کروں ہاں جی سٹارٹ؟ ہاں چلیں کرے ساتھ بس۔ ہاللویا۔ مینو دیندا جو تسلی صبح شام، مینو دیندا جو تسلی صبح شام، تیرا کلام کلام، تیرا کلام کلام، تیرا کلام کلام، تیرا کلام کلام۔ میں جدوں دا کلام تیرا چکھیا، ذرا پاپ نہ دل وچ رکھیا۔ میں جدوں دا کلام
कलाम तेरा चखिया जरा पाप ना दिल विच रखिया ऐ मेरे राह दी पहचाने तेरा कलामे कलामे ऐ मेरे राह दी पहचाने तेरा कलामे कलामे दो धारी तलवार नालों तिखाए कदी कोला कदी शैद नालों मिठाए कदी कोला कदी शैद नालों मिठाए मेरी नजात दा पैगामे तेरा कलामे कलामे ऐ मेरी नजात दा पैगामे तेरा कलामे कलामे जिंदगी दी रोटी जिंदगी दा पानी है मोया होया लई नवी जिंदगानी है मोया होया लई नवी जिंदगानी है जिंदगी दी रोटी जिंदगी दा पानी है मोया होया लई नवी जिंदगानी है मोया होया लई नवी जिंदगानी ऐ मेरी जिंद मेरी जाने तेरा कलामे कलामे ऐ मेरी जिंद मेरी जाने तेरा कलामे कलामे आमीन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। बहुत खूबसूरत। खुदावंद ही हमारी ज़िंदगी का नजात दहिंदा खुदा है। और जब हम खुदा उनको पा लेते हैं तो यकीनन हमारी जो कहते हैं किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, हमारा दिल खुशी से भर जाता है, लबरेज हो जाता है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। बहुत खूबसूरत। खुदा हमको बहुत ब्लेस करे। हालेलुया। इसी तरह कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा उन बुजुर्ग और नहत साइश के लायक है, वो सब मबूतों से ज्यादा तजीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब मबूत मजबूत है, लेकिन खुदा ने आसमानों को बनाया। अजमत और जलाल उसके हजूर में है, कुदरत और जमाल उसके मुकद्दस में है। ए कौमों के कबीलों खुदावंद की तमजीद और तमजीद करो। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम की शान है। हदी अल्लाह उसकी बारगाह में आप। हालेलुया। पाक हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। इस तरह हम आगे बढ़ते हुए खुदा उनका शुक्र करते हैं। मेरे ख्याल सिस्टर महेंद्र नहीं आई, तो मैं सिस्टर रूसा से कहूंगी कि खुदा उनके नाम को जलाल दे। हालेलुया। रबा रबा सीरा शंता सीना री 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 सीरा। रूसा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी ही सना के लिए। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी ही सना के लिए। तेरा तख्त लगे रूह का जोर बढ़े, तेरा तख्त लगे रूह का जोर बढ़े, तेरी महफिल यूं सजती रहे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी ही सना के लिए। अपनी सोचो फिक्र रखे हम एक तरफ, उसके कुर्बत में कुछ पल गुजार ले। गर हो कामिल ईमान कुछ नामुमकिन नहीं, गर हो कामिल ईमान कुछ नामुमकिन नहीं, पूरे दिल से उसे जो पुकार ले, पूरे दिल से उसे जो पुकार ले, हाँ पुकार ले। सब हाथ उठे, सब होंठ
होंठ खुले तेरी ही सना के लिए। उसने वादा किया होगा वो दरमिया, उसके नाम पे जब होंगे लोग जमा, उससे बातें करें उसको सजदा करे, उससे बातें करे उससे सजदा करे। हाँ वो मौजूद है संग हमारे, हाँ वो मौजूद है संग हमारे, हाँ हमारे। सब हाथ उठे सब होंठ खुले तेरी ही सना के लिए। सब हाथ उठे सब होंठ खुले तेरी ही सना के लिए। गर खुदावन में मसरूर हो हम सभी, पूरे दिल की मुरादें करेगा भी। Yes, Lord. Yes, Lord. मांगो भी कुछ मांगना है तुम्हें, मांग लो जो भी कुछ मांगना है तुम्हें। रहना जाए कोई दिल में ख्वाहिश तभी, रहना जाए कोई दिल में ख्वाहिश दबी, हाँ ख्वाहिश दबी। सब हाथ उठे सब होंठ खुले तेरी ही सना के लिए। तेरा तख्त लगे रूह का जोर बढ़े, तेरी महफिल यूं सजती रहे। सब हाथ उठे सब होंठ खुले तेरी ही सना के लिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Very beautiful. Hallelujah. God bless you, बेटा। यकीनन खुदा उनका जिस तरह हम गीत गाते हैं, स्ताइश करते हैं, जो भी किसी दिलो जान के साथ गाते हैं, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। जो भी लफ्ज़ हम मुँह से अदा करते हैं, और यकीनन वो हमारी खुदावंद जो है वो हमारी दुआ को सुनता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम दुआ करते हैं तो हम जब हम गीत गाते हैं तो ये भी एक खुदा का कलाम बोल रहे थे। हम शुक्र अदा करते हैं खुदा उनका, बहुत खूबसूरत। और खुदा उनके कलाम में भी लिखा है, तो खुदा में मसरूर है, मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरी करूँगा। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, जिसके आगे हम अपनी इल्तिजाओं को मिन्नतों को रखते हैं, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। क्योंकि खुदा ने कहा है तो रूह और सच्चाई के साथ मेरी प्रस्तुत कर। तो खुदा जब हम रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तुत करते हैं तो खुदा अपने जो आसमान के दरवाज़ों को, दरिचों को खोल देता है हमारे लिए। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। खुदा की हुजूरी, खुदा उनका मसा हमारे दरमियान में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी तरह कलाम में लिखा है, ऐसा पहले ज़मीन खुदा उनके हुजूर गाओ, खुदा उनके हुजूर गाओ, उसका नाम, उसके नाम को मुबारक हो, क्योंकि रोज़ रोज़ इसकी निजात की बिशारत दो। कौमों में उसके जलाल का और सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो। हालेलुया। क्योंकि वो कहते हैं कि वही साइश के लायक है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद भी बादशाहों का बादशाह है, वो शहंशाहों का शहंशाह है। हम उसको क्यों ना सजदा करें, हम उसको क्यों ना मुबारक कहें, हम उसकी क्यों ना साइश करें। खुशी के साथ गाते हुए खुदा उनके हुजूर हाजिर होते हैं और मुबारक कहते हैं, क्योंकि खुदा भला है, वो हमसे प्यार करता है, हमसे मोहब्बत करता है। हम उसकी मोहब्बत का, उसके प्यार का हम देन नहीं दे सकते, क्योंकि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रब्बना ज़ीना शंतज़ीना। हम किस तरह उसका शुक्र अदा करें, हमारे पास अल्फाज नहीं है शुक्र अदा करने के लिए, क्योंकि हमारा खुदावंद अज़ीम है। वही खुदावंद है जो जिसने हमें बचा लिया है, हमें हमारे गुनाहों को माफ कर दिया, क्योंकि उसने कहा तुम्हारे गुनाह कितने भी किस्म की हो रहा, मैं तुझे बर्फ की मान पाक और साफ कर दूंगा। वो खुदा हम तेरा शुक्र हो कि हमारा खुदा हमें माफ करने की कुदरत रखता है। उसका शुक्र करते हैं। हालेलुया। इसी तौर पे हम आगे बढ़ते हुए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं और खुदा की हमदो सना में आगे बढ़ते हैं।
हालेलुया हालेलुया। जिसको भी खुदा पाक को कह रहा है खुदा उनकी हुजूर में स्ताइश करे दिल और जान के साथ। ओ खुदा तेरा शुक्र हालेलुया। बोल सकता है, वो कह सकता है, गा सकता है, क्योंकि इस वक्त खुदा की हज़ूरी उसके दरमियान में। Praise the हालेलुया Lord. हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जी खुदावंद रू मैंने मतलब गाइड कर रहा है कि मैं गीत गावां। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ जी द मैं लॉर्ड। वेट कर रही सी कਦੋਂ ਦੀ। Praise the गॉड Lord. ब्लेस यू, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, यस यस कभी ना त्यागेगा। एक यस माँ गॉड। की तरह प्रभु शांति देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। आंसू सब पहुंचेगा, मन की चिंता मिटाएगा। आंसू सब पहुंचेगा, मन की चिंता मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिए। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिए। वो चंगा करता है, सारे रोग मिटाता है। वो चंगा करता है, सारे रोग मिटाता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ब्यूटीफुल। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।
हालेलुया, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं और खुदा उनकी हज़ूरी में आगे बढ़ते हैं। हम कलाम के लिए खुदा उनके हुज़ूर उसका शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं समरीन को कहती हूँ कि वो कलाम के लिए प्रेयर करें। हालेलुया, सॉरी प्रस्तुत के लिए। हालेलुया, हालेलुया, रबा रबा सीरा चंदा सीरा। दीदी, हालेलुया, रबा रबा सीरा चंदा सीरा। और रबा रबा तो सीरा चंदा सीरा। सिस्टर सराफीन हैं, वो कलाम के लिए प्रेयर कर रहे हैं। हालेलुया, रबा रबा सीरा चंदा सीरा दी 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 सीरा। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज की सारी प्रस्तुत के लिए, आज की सारे कलाम के लिए। खुदा खुदा जो तो हमसे बोलना है, खुदा खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, प्रस्तुत में तेरा शुक्र अदा करते हैं। एक बार फिर खुदा उसके तेरा शुक्र करते हैं। तूने बहुत खुदा तूने हमारे दिल अपने खुदा भर दिए। खुदा प्रस्तुत खुदा तेरा शुक्र करते हैं। पाक को तेरा शुक्र करते हैं, पाक को तेरा शुक्र करते हैं। एक एक जान को तू बड़ा ब्लेस कर खुदा, जिन्हों में तेरे प्रस्तुत की खुदा तेरे नाम को जलाल दिया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, तू सबको बड़ी ब्लेस कर और खुदा कुछ पे जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदा पाक को तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदा। उनके नाम के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदा। खुदा तेरी बंदी को तेरी हजूरी में लेके आते हैं खुदा। उनकी बंदी से खुदा तू खुदा जो तूने उसके दिल में कलाम रखा है खुदा, वो कलाम हमारी जिंदगी में सोगना पाल रहा है खुदा। एक एक जान को तू छूना खुदा, तेरा शुक्र करते हैं पैसमानी का। अपने खुदा अपने कानों पर तेरा खून लगा देते हैं, अपनी सोचों पर, अपने दिल पर खुदा तेरा खून लगा देते हैं खुदा। खुदा जो कुछ भी हम सुने इस कानों के वसीले से हम तुम्हारे कानों को पाक करना, और खुदा जो हम आज कलाम सुने खुदा वो हमारे दिल में सुगना फल लाए खुदा। और खुदा हम बरकत पाए खुदा, हर एक कलाम से वसीले से बरकत पाए खुदा, और जिंदगी आजाद हो यीशु के नाम से। और खुदा तू हमारी मदद करना, सही सहायता करना, कि खुदा तू हमारा खुदा बाप है खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी बंदी को तेरे खून में छिपाती हूँ खुदा। खुदा तू बंदी को बड़ी ब्लेस कर खुदा। खुदा तेरी बंदी तुझे और तुझ में और तेरे नाम को जलाल दे। इसी तरह तेरे कलाम को खुदा दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाती रहे खुदा। तेरे कलाम को फैलाती रहे खुदा, तेरे नाम को जलाल देती जाए खुदा। तेरे बंदी को बहुत ब्लेस कर, उनके खानदान को ब्लेस कर खुदा। तेरा ही नाम उनकी जिंदगी में जलाल पाता जाए खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती, सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को देते हैं यीशु मसीह नासी के नाम से। सब कुछ मांग के और पा लेती है यीशु मसीह के बाबरकत और जिंदा जाए नाम से, आमीन। सिस्टर शहीद, वेलकम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, और खुदावंद हमेशा आपको अपने नाम, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आपके ऊपर हमेशा खुदावंद का हाथ जो है बड़ा रहे, और आप इस ग्रुप के लिए, अपनी फैमिली के लिए बाइसे बरकत बनते रहे। गॉड आमीन। ब्लेस यू। शुक्र करते हैं हम खुदावंद का कि आज खुदावंद ने हमें फिर से इकट्ठा किया कि हम उसके नाम को जलाल दें। अगर किसी की कोई टेस्टमनी हो कल, क्योंकि हमने बात की थी शायद कि अगर तो कोई अगर देना चाहता है तो मैं दे दूंगी। सकते लास्ट वीक हाँ। की है, जब आप नहीं थी, तो ट्यूसडे को जिस दिन आपसे बात हुई तो आपने मुझे कहा था कि मैसेज मतलब कर लेना, तो मैंने कहा था ओके। तो उसके बाद ही 3 बजे एकदम से मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई कि मेरे से मतलब कुछ हो भी नहीं था रहा। तो उस दिन मैंने रात को मतलब ख्वाब इस तरह देखा था कि एक जो हम इसमें देखते हैं पिक्चर्स पे कि एक वो सींगों वाला सांप, वो शैतान सा है, तो वो मैंने देखा कि मेरे पेट पे ऐसे ना उसने आके पकड़ लिया जोर से और जकड़ लिया। तो उस दिन मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होगी दूसरे दिन पे। लेकिन फिर प्रेयर मतलब करते रहे। फिर मैं उसी दिन ट्यूसडे को जब हमने प्रेयर किया तो मैंने सबको बताया ग्रुप में कि तबीयत नहीं ठीक, लेकिन ये कि मैं दुआ जरूर जो है वो अटेंड करूंगी। तो सबने मेरे लिए प्रेयर भी की, और मैंने मतलब पूरे 2 घंटे जितने भी था मैंने प्रेयर अटेंड की। तो उस रात जब मैं सोई हूँ तो ये कि मैंने फिर ख्वाब देखा सुबह सुबह 5 बजे के करीब के इस तरह एक ब्लू हेड वाला सांप है। तो दरवाजा खुला है, तो उसमें से वो अंदर आया, और साथ सैलाब का पानी भी है। शायद हम न्यूज भी देख रहे थे तो इस तरह, तो वो सैलाब के पानी के साथ अंदर आ गया। सर सिर्फ वो अपना उठा रहा है ऊपर को, और ना बाकी सारा वो पानी में है। और सर जो उसका है वो अजदहा की तरह का है, और रेड कलर का है।
बाकी पीछे से मुझे नहीं नजर आया। तो मैंने देखा कि मेरे पास एक स्टिक आ गई है, जैसे स्केल होता है लकड़ी का, तो मैं कहती हूँ मैं किससे मारूं, तो मैं उसी से उसको मतलब मारती हूँ और सर उसका जो है वो काट देती हूँ। तो जैसे ही फिर मैं उठी हूँ सुबह 6-7 बजे उठी हूँ, उस दिन उठ भी मैं जल्दी गई और फिर मैं बिल्कुल अपने आप को बेहतर फील कर रही थी। और ये कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे जो भी मेरे अंदर बीमारी थी ना वो चली गई है। तो मैंने प्रेज खुदावंद का गॉड, शुक्र किया कि खुदावंद ने मतलब मुझे दिखाया कि मेरी कोई गलती थी जिसकी वजह से मतलब शैतान ने मुझे ये कि जकड़ लिया। लेकिन फिर सबकी दुआओं के वसीला और खुदावंद के साथ वफादारी के खुदावंद के साथ जो वक्त एक कमिटमेंट मैंने खुदावंद के साथ की हुई है कि मैं 8 से 10 खुदावंद को टाइम दूंगी, और जिस हालत में भी थी मैंने खुदावंद को वक्त दिया और प्रस्तिश भी की उस दिन, सच उसके मैं कल दूसरे दिन। तो खुदावंद ने ये कि मुझे आजाद किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद अपने लोगों को बताता है और गाइड करता है कि कहाँ हमसे कुछ ऐसी हो गई है ना? तो ज़रूर अगर खुदावंद आपको गाइड करे या अपनी गलती जो होती है हमारी उस पे उँगली रखे तो ज़रूर उसको कोशिश करें। खुदावंद के ज़ोर से हम उसको निकाल सकते हैं, फ़तह पा सकते हैं। यही जंग है ना? प्रेज़ गॉड, गॉड ब्लेस यू पापा। अगर और किसी की है नहीं तो फिर हम हम प्रेयर शुरू करते हैं। हाँ जी, जी, प्रेज लॉर्ड। हाँ हाँ जी, हाँ जी, जी। खुदावंद ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲॉर्ड। प्रेज़ ਤੇ गॉड। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰੂਟ ਮਿਲਿਆ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਫਰੂਟਸ ਅਲਾਉ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਹ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਫਰੂਟ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹਤ ਸੀ, ਹਨਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਿਓ, ਹਨਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਹਿਣਾ ਹਨਾ, ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਹਿ ਸਕੋ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਕੇ ਸੁਣੂਗੀ ਬੈਠ ਕੇ, हालेलुया, ਪਰ ਮੈਂ हालेलुया। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਗੀ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਫਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸਮਾਨੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਰੂਹਾਨੀ ਵੀ, ਹਨਾ, ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੀ ਵੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਵਰ ਸੀ 104 ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਚਲੇ, ਹਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾਵਰ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾਵਰ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਹਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਹਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰੂਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ 5-6 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਆ ਟੀਵੀ ਖੋਲੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੰਜਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਫੂਡ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਮਤਲਬ ਬੈਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 1-1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅੰਜਨਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜੁੜਦੀ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਸਿਸਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਿੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੀਤ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਓ ਸਿਸਟਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀਏ ਜਹਾਨ ਤੇ, ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ। ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀਏ ਜਹਾਨ ਤੇ, ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਿਓ ਹਾਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਿਓ ਹਾਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਾਮ ਥੱਕੇ ਹਾਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਾਮ ਥੱਕੇ ਹਾਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਲਗਨ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ, ਲਗਨ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਾਮ ਥੱਕੇ ਹਾਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਾਮ ਥੱਕੇ ਹਾਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀਏ ਜਹਾਨ ਤੇ, ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀਏ ਜਹਾਨ ਤੇ। ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ, ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਸਿਸਟਰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड, थैंक यू। हालेलुया। हाँ जी, हम सीख रहे थे जो 7 ईदें हैं, है ना, उसके बारे में सीख रहे थे। और हमने सीखा कि फसा के बारे में, है ना, पास ओवर के बारे में, कि खुदा यीशु मसीह हमारा फसा का बर्रा है, और हमारी जो
बेखमीरी रोटी है और पहला फल जो पहला पूला जो है ना, फर्स्ट फ्रूट, वो खुदावंद यीशु मसीह है। और ईद पेंतिकोस हम किस तरह मनाते हैं और इसराइली किस तरह मनाते थे, है ना। और नरसिंगों के बारे में हमने सीखा कि जो नरसिंगा है वो हमारी जिंदगी में किस तरह अहमियत है जो रखता है, या उसका हमारी जिंदगी में मतलब क्या है ना। कि वो जब नरसिंगा फूंका जाएगा तो रैप्चर होगा, कलीसिया जो है आसमान पर उठा ली जाएगी। जो चर्च है, जो मसीही लोग हैं, या जो एज ए दुल्हन तैयार हो रहे हैं, सब मसीही नहीं, जो खुदावंद यीशु मसीह की तरह तैयार हो रहे हैं, पाक दामन कमवारी की मानी तैयार हो रहे हैं, वो जब नरसिंगा फूंका जाएगा तो आसमान पे वो उठा लिए जाएंगे, है ना। तो आज हम थोड़ा सा सीखेंगे कि जो इसराइलियों को खुदावंद ने मनाने के लिए कहा था, कफारे का दिन, या ये कफारे की ईद, और उसके बारे में थोड़ा सीखते हैं। तो हमारे साथ मेरा लरूसा है और सोनिया है शायद, है ना, सोनिया नहीं रीडिंग। जी, हाँ जी, सोनिया नहीं अंजना आई को। तो हाँ जी, अंजना पढ़ लेती है। हम्म। अरुषा, जी जी हाँ जी, आप निकालना है 12-23 चैप्टर, और उसकी 26 आयत से पढ़ना, जी जिसके बारे में जिससे हमें पता चलता है कि कल हमने सीखा था कि 7वें महीने की पहली तारीख को नरसिंगों की ईद जो थी इसराइली मनाते थे, या खुदावंद ने हमको कहा था कि और जो फसा था वो पहले साल के पहले महीने की 14 तारीख को वो मनाते थे, और 10 तारीख को वो बर्रे को अपने घरों में लेके आते थे, है ना। ये हमने थोड़ा सीखा था। और उसी महीने में 23 बार 23 जी अहबार की किताब, लेवियों की किताब, उसका 23 बाब और उसकी 26 आयत। जी प्रेज़ गॉड। और खुदावंद ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है। उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफारा का दिन है जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे, वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। और जो शख्स उस दिन किसी तरह का काम करे, उसे मैं उसके लोगों में से फना कर दूंगा। तुम किसी तरह का काम मत करना। तुम्हारी सब सकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त सदा यही आइन रहेगा। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत हो। इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबत मनाना। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि उसी 7वें महीने की 15वीं तारीख से लेकर 7 दिन तक खुदावंद के लिए ईद क़याम होगी। पहले दिन मुकद्दस मजमा हो। तुम उस दिन कोई खादमाना काम ना करना। तुम 7 दिन बराबर खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। 8वें दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और फिर खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। वो खास मजमा है, उसमें कोई खादमाना काम ना करना। ये खुदावंद की मुकर्ररा ईदें हैं जिनमें तुम मुकद्दस मजमों का
اعلان کرنا تاکہ خداوند کے حضور آتشین قربانی اور سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور ذبیحہ اور تپاون ہر ایک اپنے اپنے معین دن میں گزرانا جائے، ماں سوا ان کے خداوند کے سبتوں کو ماننا اور اپنے ہدیوں اور منتوں اور رضا کی قربانیوں کو جو تم خداوند کے حضور لاتے ہو گزرانا، اور 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو 7 دن تک خداوند کی عید منانا۔ پہلا دن خاص آرام کا ہو اور 8واں دن بھی خاص آرام ہی کا ہو۔ سو تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بیدیں مجنو لینا، اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا، اور تم ہر سال خداوند کے لیے 7 روز تک یہ عید مانا کرنا۔ تمہاری نسل در نسل سدا یہی آئین رہے گا کہ تم 7ویں مہینے اس عید کو مانو۔ 7 روز تک برابر تم سیابانوں میں رہنا، جتنے اسرائیل کی نسل کے ہیں سب کے سب سیابانوں میں رہیں، تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لا رہا تھا تو میں نے ان کو سیابانوں میں ٹکایا تھا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو خداوند کی مقررہ عیدیں بتا دی۔ آمین۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو روسا، خدا برکت دے آپ کو۔ ہاں جی، اس میں ہم نے آج کل ہم نے سیکھا تھا کہ نرسنگے کی جو عید منانے کے لیے خدا نے کہا 7ویں مہینے کی 1 تاریخ کو، ہے نا، اور اب جو ہے اسی 7ویں مہینے کی یعنی 9 تاریخ سے خدا نے کہا رات کو ہی، یعنی ان کے تیاری کے لیے، اور 10 تاریخ کو وہ یعنی جو کفارے کی عید ہے وہ خدا نے منانے کے لیے کہا، ہے نا۔ تو یہ کفارے کی عید جو تھی، یہ کہہ لیں اس طرح یہ منایا کرتے تھے، یا اس طرح یہ ہوتا تھا، یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو کاہن ہوتا تھا، سردار کاہن، وہ سب کی طرف سے ہو کے، پوری اسرائیلی قوم کی طرف سے ہو کے کیا کرتا تھا، قربانیاں چڑھایا کرتا تھا، اور اپنی فیملی کی طرف سے اور بنی اسرائیل قوم کی طرف سے ہو کے قربانیاں جو ہیں چڑھایا کرتا تھا، اور یعنی پورا سال وہ تیاری کرتا تھا، اور پھر اس کے اندر جایا کرتا تھا خیمہ اجتماع کے اندر، جہاں پہ عہد کا صندوق پڑا ہوا تھا، وہاں پہ وہ جاتا تھا، اور یہ دیکھیں، ہے نا، تو اس دن وہ اندر جاتا تھا، اور یہ پورا خیمہ اجتماع ہے جہاں بنی اسرائیل قوم جو تھی کہہ لے رہتی تھی، اور وہ یہاں پہ قربانیاں چڑھائی جاتی تھی۔ اس لیے دیکھیں کہ جتنی بھی عیدیں تھیں ان کے ساتھ، سب کے ساتھ یہ خدا نے ساتھ لکھا بتایا کہ قربانیاں چڑھانی، اور ہمیں پتہ ہے کہ نئے عہد نامے میں قربانیاں کیا ہیں، ہے نا، یعنی جو ہم دعائیں کرتے ہیں، جو کہہ لیں خدا ان کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یہ قربانیاں، ہے نا، اور ہدیے نذرانے، یعنی فزیکلی بھی روحانی بھی ہم لے کے جاتے ہیں خداوند کی حضوری میں۔ تو یہ ہر ہی عید میں وہ یہ کیا کرتے تھے کہ قربانیاں جو تھی وہ چڑھایا کرتے تھے، اور اس میں خاص خداوند نے ایک قسم کا جیسے کہہ لیں کہ روزے کا، کیونکہ دکھ کا اگر ہم دکھ کس طرح ہم اپنی جان کو کہہ لیں دیتے ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ ہمیں خداوند کہہ لیں کہ متی کی انجیل میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں دکھ دینا کیا ہے نا، کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، دعا میں ٹھہرتے ہیں، تو پھر
ये अपनी जान को हम दुख देते, तो खुदावंद ने उनको कहा कि तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना। तो इसलिए इसराइली कौम जो थी, जब जो सरदार काहिन जो है वो हर फैमिली की तरफ से, पूरी बनी इसराइल कौम की तरफ से, जैसे पहले एक बकरा जो था, बकरे के ऊपर या जो भी बछड़ा होता था, बर्रा, उसके गले में कहते हैं कि वो उस फैमिली के नाम का एक जैसे कहले पटा जैसा डाल देते थे, और वो उसका नाम लिखा होता है। जैसे फर्ज करें मेरी फैमिली है तो जावेद का नाम लिखा होता है, और वो बकरे के उसके बर्रे के गले में डाल देते थे। तो वो हमारी फैमिली की तरफ से कफारा जो था, वो जो सरदार काहिन था वो उसको ज़िबा करता था, या कुर्बानी जो थे उसकी चढ़ाया करता था। तो वो क्या थे, मेरी फैमिली के सारे गुनाह जो थे उस बकरे के ऊपर चले गए। और वो कुर्बानी कौन दे रहा है, वो सरदार काहिन जो था, जो महान पुजारी था, है ना, वो कुर्बानियां जो थी वो दिया करता था, पूरी बनी इसराइल कौम की तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से भी। तो इसलिए ये जो था ये कफारे का दिन था, यानी जो भी बनी इसराइल ने कह लें पूरे साल में गुनाह, गलतियां, कोताहियां, जो भी कुछ उन्होंने किया होता था, उसके उसकी कह लें माफी का दिन होता था। और पूरी बनी इसराइल उस वक्त कह लें अ, के दुख में, मुसीबत में, या उसमें दुआ में ठहरी होती थी, रोजे में ठहरी होती थी और दुआएं कर रही होती थी, क्योंकि ये क्या था, कफारे का दिन था। और बड़ी जो इसराइली कौम है, जैसे कह लें रोने में और आहोजारी करने में उस दिन कह लें ठहरी होती थी। और बड़ी उनके उसमें लिखा हुआ है कि बड़ी तज़ीम के साथ और खौफ के साथ खुदा उनके सामने झुके होते थे और तौबा कर रहे होते थे, अपने गुनाहों से माफी मांग रहे होते थे खुदा उनसे। और जो सरदार काहिन है वो उनकी तरफ से होके क्या करता था, बकरों की जो कुर्बानियां हैं वो चढ़ाया करता था। तो इसलिए इसको पाक जो ईद है वो भी कहा जाता है, या पाक दिन जो है वो भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक पूरी बनी इसराइल कौम कह लें कि पाक हो रही होती है, ये या ठहरी होती है उसके लिए कि खुदावंद जो है अब हमें हमारे जो गुनाह थे, जो गलतियां थी, जो भी कुछ हमने किया है उससे माफी के लिए उस वक्त वो ठहरी होती थी। और बड़े एक ऐसे मैं कहूँ कि ताज़ीम, जो बड़ी इज्जत जैसे देते हैं, ऑनर करते हैं खुदावंद को, है ना, तो उसमें ठहरी होती थी, क्योंकि बड़े अम, अ, उस दिन जिस दिन ये सरदार काहिन कफारा दे रहा होता था या कुर्बानियां कर रहा होता था, उसके बाद उसने हैकल में जाता था जहाँ अहद का संदूक पड़ा होता था, ये यहाँ अंदर, है ना। तो अगर उसकी जिंदगी में गुनाह होता था तो क्या होता था, वो सरदार काहिन खुदावन की जब हजूरी में जाता था तो वो वहीं पे मर जाता था। ये आगे उसमें हम सीखेंगे कि उसके घंटियां बांधा करते थे, उसका जो अ, जुब्बा जो वो पहनता था, तो उसके ऊपर घंटियां बांधी होती थी और एक रस्सी बांधी होती थी, और बाहर जो थे वो जो दूसरे काहिन थे, ये सरदार काहिन था, और जो काहिन के बेटे होते थे वो बाहर बैठे होते थे होली मकाम पे। तो जब वो अंदर काम कर रहा होता था सरदार काहिन जो था, जैसे वो अहद के संदूक के ऊपर लहू लगा रहा होता था खुदा जिस उसका बर्रे का, और अंदर काम कर रहा होता था। तो जब वो उसकी जब तक उसकी आवाज आती रहती थी घंटियों की, तो उनको पता होता था कि हाँ ठीक है। लेकिन जब घंटियों की आवाज आना बंद हो जाती थी तो वो समझ जाते थे कि इसकी जिंदगी में कोई गुनाह था, वो सरदार काहिन की, तो वो मर गया है। तो का वो इंतजार करते थे और फिर वो रस्सी से उसको बाहर खींच लिया करते थे। तो इसका मतलब होता था कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह था, कुछ ऐसा था
جس کی وجہ سے کیا تھا وہ خداوند کی حضوری میں ٹھہر نہیں سکا اور اس کی وہیں پہ موت ہو گئی. تو اس وجہ سے بھی اسرائیلی قوم کہہ لیں کہ بڑے ایک خداوند کے ڈر اور خوف میں جھکی ہوتی تھی خداوند کے سامنے کہ خداوند ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کے جو ان کی طرف سے ہو کے کفارہ دے رہا ہے، ان کی طرف سے ہو کے ان کے گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ اپنے اوپر لے رہا ہے نا، معافی مانگ رہا ہے. تو اس لیے اسرائیلی قوم جو کے لیے یہ دن بڑا ہی خاص تھا. اس کو بڑے ہی ڈر اور خوف میں یہودی جو قوم تھے، اسرائیلی قوم جو تھی وہ منایا کرتی تھی. اور ہر سال یہ سال کے 7ویں مہینے میں اور اس کی 10 کہہ لیں تاریخ کو یہ مقدس جو تھا مجمع ہوتا تھا اور وہ دعا میں اور روزے میں ٹھہرے ہوتے تھے. اور اگر ہم 10 کا بھی جو ایک عدد جو ہے اس کا بھی دیکھیں، ایک تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ جیسے 10 حکم ہیں ہے نا، اور 10 جو سینگ تھے، جو جو کیا اس کو بولتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب میں ہے، جو قربان گاہ تھی اس کے سینگ جو تھے وہ بھی 10 تھے. تو اس لیے 10 کا ہنسا جو ہے یہ بھی بڑی ایک کہہ لیں کہ اہمیت بائبل میں جو ہے وہ رکھتا ہے. اور اگر 10 کے عدد کو اس کا روحانی جو مطلب ہے وہ ہم دیکھیں تو ایک قسم کا کہہ لیں کہ ایک چیز یا کوئی کام جو ہے جیسے کہہ لیں مکمل ہوا ہے اور نیا کام جو ہے شروع ہوتا ہے. کیونکہ 10 پہ آ کے 1 سے لے کے جیسے کہہ لیں 1 سے لے کے 10 تک ایک پورا جیسے میں کہوں گی ایک جیسے کہ چیپٹر ہے یا ایک وہ ختم ہو جاتا ہے اور نیا جو ہے شروع ہوتا ہے. تو اس لیے 10 کا عدد تبدیلی کا بھی عدد ہے. 10 کا جو عدد ہے اس کا مطلب جو ہے کہ ایک کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا اور دوسرا کام شروع ہوا ہے. تو اس لیے یہ 10 جو تھی تاریخ کہہ لیں. اور پھر آپ انجنا نکالنا مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 چیپٹر، جی اس میں بھی 10 کا ہمیں ملتا ہے کہ جو مصیبتیں ہیں جو بنی اسرائیل پہ یا اسرائیلی قوم کے لیے بھی خدا نے کہا کہ 10 دن تک مصیبت ہوگی. ہاں جی ہاں جی، اس کا 2 مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 10 آیت آپ پڑھنا. ہاں جی. ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੈਂ ਭੋਗਣੇ ਹਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀ, ਵੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸੁੱਟੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ. ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਤ ਦਿਆਂਗਾ. ਆਮੀਨ. آمین. ہاں جی، تو یہاں پہ بھی دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 دن کی مصیبت کا ذکر ملتا ہے. جیسے 10 تاریخ کو جو بنی اسرائیل قوم تھی خدا نے یہ کفارے کی عید منانے کے لیے کہا تھا، یعنی 10 تاریخ کو. اسی طرح خدا نے کہا کہ 10 دن تک وہ مصیبت اٹھائیں گے اور دکھ میں سے گزریں گے ہے نا، آزمائش میں سے. تو اس لیے یہ آزمائش کے 10 دن جو ہے آزمائش کو بھی ایک قسم کا کلم پیش کرتا ہے. اور یہ خداوند جو تھا اسرائیلی قوم کو یعنی یہ بھی ایک قسم کا امید بھی دے رہا ہے ساتھ کہ جو مصیبت ہے وہ تھوڑے دنوں کی ہے، کیونکہ ایک ٹائم لیمٹ بتا دی ہے خداوند نے کہ 10 دن تک مصیبت ہوگی اور پھر کیا ہوگا، زندگی کا تاج جو برداشت کرے گا ہے نا، جو وفادار رہے گا ہے نا، جان دینے تک وفادار رہے گا تو زندگی کا تاج اسے دے گا خداوند ہے نا. تو اس لیے یہ ایک 10 کا حصہ ہے، وہ ٹائم لیمٹ کو بھی بتاتا ہے، مصیبتوں کو بھی بتاتا ہے، آزمائش کو بھی بتاتا ہے. تو بالکل اسی طرح کفارے کی جو عید ہے خداوند نے جب وہ اسرائیلی قوم دعا میں کہہ لیں روزے میں دکھ دے رہی ہوتی تھی، اپنے آپ کو گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے تھے ہے نا، تو لیکن اس کے بعد کیا ہوتا تھا، یہ خوشی مناتے تھے جب یہ سارا سردار کہن جو کفارہ دے دیتا تھا اور
जब ये सारा अपना जो खुदा ने कुर्बानियां देने के लिए कहा था, वो सब्बत का दिन जो था, आराम का दिन जो वो मनाते थे और उसमें मुकद्दस मजमे, तो उसके बाद ये खुशी मनाया करते थे, क्योंकि क्या हो गया, उनके गुनाहों की माफी हो गई, है ना। तो वो उसके बाद खुशी मनाते थे। तो इसलिए ये 10 का जो अदद है, इस तरह भी होता है कि इसके बाद क्या है, मुसीबतों के बाद, दुखों के बाद क्या होगा, खुशी का दिन आएगा या आराम का दिन जो है वो मिलेगा। तो इसलिए ये कफारे का जो दिन है या कफारे की जो ईद है, ये बड़ी ही इसराइली कौम जो कह लें कि अ, इसको पाक दिन भी कहा जाता था, कहते हैं अभी भी, है ना। तो इसलिए ये एक इसको आजमाइश का भी और इसको इंसाफ का भी, कि अगर उनकी जिंदगी में कोई गुनाह होता था तो उनकी माफी नहीं होती थी उस सरदार कायन की, या उनके लिए कफारा जो था वो नहीं होता था, है ना। तो इसलिए ये कह लें कि ये जजमेंट भी थी उनके लिए। तो इसलिए ये बहुत ही खास दिन है, और ये अब हमारे लिए खास किस तरह है कि हमें भी खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि अंजना, आप मत्ती की इंजील निकालना। हाँ जी, 5 चैप्टर। हाँ जी, 5 चैप्टर, उसकी 23 और 24 आयत। हाँ जी, पढ़ा बच्चे। ਸੋ ਜੇ ਤੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੋਟ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਚੜਾ। आमीन। आमीन। हाँ जी, हाँ जी। तो देखें, अब हमें भी खुदा ने ये कहा है कि अपनी जो दुआएं हैं, कुर्बानियां हैं, जो भी नजरें चढ़ानी है, लेकिन अगर तेरे आपस में कोई बहन भाइयों में कोई शिकायत है, कोई गुस्सा है, कोई नाराजगी है, या तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा है, तो उसको वहीं छोड़ दे। पहले जो क्या कर, जाके सुलह कर, पहले जो है अपने गुनाहों की कह ले तौबा कर, माफी मांग, है ना। तो फिर जो है खुदा उनकी उसमें आ, हजूरी में आ, और तब जो है खुदावंद जो है वो तुझे माफ करेगा और तुझे बरकत देगा, है ना। तो इसलिए अब ये हमारे ऊपर भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तब तक आप हमारे हदिये नजराने या जो भी हम कुर्बानियां चढ़ाते हैं, तब तक तू ना कर, जब तक तेरी अपने भाई के साथ या किसी के साथ भी जो सुलह है वो नहीं हो जाती, है ना। फिर एक और हवाला हम पढ़ते हैं इसी का, मत्ती 27 बाब और उसकी हाँ जी, 24 और 29। 24 to 29, ठीक है। ਜਦ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ओ ਮੈਂ ਇਸ सॉरी, ਤੇ सॉरी अंजना 24 बाब है, 32-24 बाब। वर्स बाजी यही है ना? हाँ, वर्ष हो गई, वर्ष 29। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਝਟ ਸੂਰਜ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਚਾਨਣੀ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਪਿੱਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਉਹ ਚੌਹਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। हाँ जी, बस आमीन। ठीक। आमीन, थैंक यू। हाँ, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो मुसीबत है अब किस तरह आएगी, है ना। ये जो और फौरन उन दिनों के मुसीब के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे। ये फिर खुदावन जो है एक किस्म की हमसे या इसराइली कौम से बात कर रहा है कि उस वक्त क्या करेंगे, सब कौमें छाती पीटेंगी जिन्होंने खुदावन को यानी रिजेक्ट किया, जिन्होंने खुदावन को नहीं माना, खुदावन यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है, इब्ने आदम को यानी खुदावन यीशु मसीह को।
तो वो लोग क्या करेंगे, छाती पीटेंगे। जिस तरह ये इसराइली कौम कह लें कि क्या कर उस वक्त क्या करती थी, रोती थी दुआ में और रोजे में ठहरती थी। तो इसी तरह जो जो लोग अब जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को रिजेक्ट किया है, तो जब खुदावंद आएगा तो जब वो दुख और मुसीबतें आएंगी तो वो क्या करेंगी, छाती पीटेंगी। तो इसलिए ये जो अब जो हम नए अहदनामे के लोग हैं, उनके लिए भी ऐसे ही है कि अगर हम जब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं करते या हम गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, है ना, तो हमारे लिए भी ये दुख या ये अगर हम गुनाह में गिरे हुए हैं तो इसी तरह क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर ये दुख और मुसीबतें जो आएंगी। जिस तरह इसराइली कौम क्या कर उस वक्त दुआ में ठहरी होती थी, दुख में होती थी, तकलीफ में होती थी, मुसीबत में होती थी और अपने गुनाहों की माफी मांग रहे होते थे। तो इसी तरह जो अब मसीह को कबूल नहीं करेंगे, उस वक्त वो छाती पीटेंगे, ये रोएंगे और लेकिन उस वक्त उनका कोई कह लें कि उनको हल नहीं मिलेगा, उस वक्त कोई माफी नहीं होगी, है ना। तो इसलिए ये अब जो हमारे नए ऐहदनामे के हैं उनके ऊपर इस तरह आता है ना। तो इसलिए ये दिन जो है, तो हम जो है इसको इस तरह मनाते हैं कि जब हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम इस जो ईद है, इस ये कफारे की ईद जो है, उसको इस तरह मनाते हैं। क्या हुआ कि हमारे गुनाहों की माफ़ी जो है, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से होगी। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर जान दी। जिस तरह हमें पता ही है कि जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब चढ़ाया जा रहा था, तो हैकल में उस वक़्त जो बर्रे थे, उनकी कुर्बानियाँ जो थी, वो हो रही थी। जिस वक़्त उधर से ख़त्म हो गई थी यानी सरदार काहन एक टाइम होता था, है ना? तो वो कुर्बानियाँ दे रहा होता था पूरी कौम की तरफ से। तो उस टाइम हमारा यीशु जो था, उसको सलीब पे चढ़ाया हुआ था, है ना? तो जब उधर से सारा मुकम्मल हो गया काम, तो इधर से खुदावंद यीशु मसीह जो उस वक़्त सलीब पे जिसको चढ़ाया हुआ था, है ना? तो उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह की इधर से कुर्बानी जो थी कह लें पूरी हुई, है ना? जब खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी और उधर सरदार काहिन जो था हैकल में, उस वक़्त कुर्बानियाँ दे रहा था या उस वक़्त उसका भी टाइम जो कह लें, जितनी बनी इस्राइल की कौम की होती थी, वो बर्रे होते थे, उनको वो कुर्बान कर लिया था और तब खुदावंद ने भी देखे कहा कि अब तमाम हुआ, है ना? यानी सारा काम जो है मुकम्मल हो गया। तो उस तरफ सरदार काहिन जो था बनी इसराइल का उसकी जो बनी इसराइल की कुर्बानियाँ वो जो दे रहा था उनकी तरफ से हो के उन उसका भी काम जो था मुकम्मल हो गया। तो इसलिए हमारा जो सरदार काहिन है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। उसने हमारी जो गुनाह थे, वो अपने ऊपर ले लिया। हमारे जो खताएँ थी, वो अपने ऊपर ले ली। तो इसलिए हमें जब मसीह में आ जाते हैं, तो ये जो है कफ़ारे की ईद जो है, हम इसको इस तरह मनाते हैं। इसलिए हम जो हैं, अगर गुनाह में अभी भी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो हमें भी उसी तरह कह लें माफ़ी माँगने की, जिस तरह बनी इस्राइल क्या करती थी, बड़ी तज़ीम से, बड़े दुःख से, दर्द में होके अ उस वक़्त दुआ में और रोज़े में ठहरती थी, है ना? तो इसका मतलब है हमारी ज़िंदगी में भी अगर गुनाह चल रहा है, कहीं न कहीं हम इस तरह फँसे हुए हैं, तो हमें भी बड़े एक खुदावंद की तज़ीम में रहते हुए, उसको इज़्ज़त देते हुए, उस गुनाह से माफ़ी माँगने की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत है, रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है और तब हम जाके उस हैकल में या वो कुर्बानियाँ देने के जैसे कह लें कि काबिल होते हैं। तो इसलिए ज़रूर जिस तरह हमने मत्ती की इंजील में पढ़ा है ना कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अपनी नज़रें वहीं पे छोड़ दे। अपनी जो कुर्बानियाँ तूने चढ़ानी है, जो भी कुछ करना है तूने, उसको वहीं पे छोड़ दे। पहले जाके क्या कर, सुलह कर या पहले अपने आप को क्या कर, तौबा कर, माफ़ी माँग, है ना? फिर जो है कुर्बानियाँ चढ़ा। इसी तरह ये बनी इसराइल कौम जो थी, ये क्या करती थी हर साल 7वें महीने में अपने आप को जैसे कह लें पाक और साफ करती थी और सरदार काहिन इनकी तरफ से होके कफ़ारा दिया करता था। कफ़ारे का सबको पता है कि
हमारी तरफ से हो के जैसे वो माफी मांगा करता था खुदा उनसे, या वो कुर्बानी जो थी बर्रे की वो चढ़ाया करता था, तो अब जो है खुदा यीशु मसीह ने हमारे सारे जो गुनाह थे, हमारी सारी गंदगी जो थी, नापाकी जो थी, वो हमारी तरफ से हो के खुदा उनके हजूरी में लेके गया और हमें पाक साफ किया, है ना। तो इसलिए ये हम इस तरह मनाते हैं मसीही। तो इसलिए जहाँ कहीं भी आप, जब भी जब भी क्या, मैं तो कहूँ हम बड़े ही रोज ही गुनाह करते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो खुदावंद के सामने बड़ी ही, जैसे कह लें, आजिज़ी के साथ बड़े ही डर और खौफ में रहते हुए खुदावंद की हुजूरी में जाएं और खुदावंद से माफी मांगे कि खुदावंद मैंने आज किसी भी तरीके से तुझे शर्मिंदा किया है इब्लीस के सामने, है ना। अब मैंने गुनाह किया है, मैंने तुझे दुख दिया है ना। तो माफी मांगे। और मैं तो कहूंगी कि हम जब भी दिन में टाइम मिले, जब भी हम दुआ करें तो माफी मांगे। ये जो है एक हमारे पास तो इतना आसान तरीका है, हमें तो बकरे बर्रे कुछ भी जो होती हैं वो चढ़ाने की जरूरत नहीं। हमारे पास खुदा यीशु मसीह का लहू है, खून है, वो हम जब अपने ऊपर लगाते हैं और माफी मांगते हैं तो हमें माफी मिल जाती है ना। तो हमारे लिए तो बहुत आसानी खुदा यीशु मसीह ने कर दी है, सारा कुछ तो उसने उठा लिया, दुख मुसीबत, है ना, कोड़े, वो जिल्लत की मौत जो थी हमने मरनी थी, वो खुदावंद यीशु मसीह ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, है ना। तो हमारे लिए तो खुदावंद ने बड़ी ही, मैं कहूंगी कि आसानी पैदा कर दी। बिस्तर पे बैठ के लेट के भी यीशु के लहू को लगाएंगे तो खुदावंद यीशु मसीह हमें, उसके खून में ऐसी कुदरत है, ताकत है ना, कि वो हमें माफ कर देता है, हमें पाक साफ कर देता है। जहाँ जितने भी गंदे गुनाह हो, जितनी मर्जी हमने गलाजत में जिंदगी गुजारी है, खुदा यीशु मसीह का खून जो है वो हमें पाक साफ करने की पूरी कुदरत जो है, ताकत जो है वो रखता है ना। तो इसलिए ये जो सरदार काहिन किया करता था, वो हमारे खुदा यीशु मसीह ने सलीबी मौत के जरिए से वो सारा काम जो है मुकम्मल कर दिया है। अब हमें सिर्फ ये है, ये करने की जरूरत है कि जब कभी आपको पता है कि मैंने गुनाह किया है, तो ज़रूर जाएँ खुदावंद की हुज़ूरी में, है ना? और खुदावंद से माफ़ी माँगे। तो खुदावंद जो है वो हमें पाक साफ़ करने की पूरी क़ुव्वत और ताकत जो है वो रखता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए इस्राएली कौम क्या थी, खुदावंद ने उसको ये ईद मनाने के लिए कहा कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफ़ारे की ईद जो है वो ज़रूर मनानी है। यानी पूरे जैसे कह लें साल की जो थी, हर सबत को भी वो इकट्ठे होते थे, लेकिन ये सबत जो थी ये ख़ास थी। जो ये साल का जो सबत का दिन था, ये ख़ास था। इस दिन कफ़ारे का जो दिन है या कफ़ारे की जो ईद है, वो इस्राएली कौम मनाने के लिए खुदावंद ने कहा था, है ना? तो इसलिए हम भी जैसे मैं कहूँगी कि हर रोज ही माफी मांगते हैं, लेकिन खास साल के जैसे मैं कहूँ कि हमारे चर्च में इस तरह करते हैं कि वाकई ही जिस दिन हम ईद रेज़रेक्शन डे जो मनाते हैं, खुदा यीशु मसीह के जी उठने की दिन जो मनाते हैं, या ईस्टर ज्यादा सबको नाम तो वो मनाते हैं, तो उस दिन पहले 7 दिन जो है रोजे और दुआ में ठहरते हैं। और ख़ास रोज़ ही सुबह शाम जो मुक़द्दस मजमा है वो चर्च में होता है ना? तो अगर आपके चर्चेस में नहीं होता तो आप कोशिश करें कि घरों में ही 7 दिन ज़रूर, इस दफ़ा जब आएगा, ईस्टर आए या क्रिसमस आए, तो पहले 7 दिन ज़रूर रोज़ा रखें। चाहे वो खुशी का दिन है, लेकिन तब भी उस खुशी में भी जब शामिल हों, खुदा यीशु मसीह के पैदा होने की जो हम मनाते हैं, वो भी हम इसी तरह मनाते हैं। हम दुआ और रोज़े में ठहरते हैं और अपने गुनाहों की, जैसे कह लें, माफ़ी माँगते हैं, तौबा करते हैं ना? तो
کیونکہ یہ بھی ایک آپ بھی ایک بچوں میں میرے شامل ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بھی یہ جو ایک برکت ہے، یہ بلیسنگ ہے جو خداوند کی طرف سے وہ، کیونکہ ہم کیا ہو رہے ہیں، پاک ہو رہے ہیں، تو یہ ایک ہمیں اور موقع مل جاتا ہے کہ ان دنوں میں بھی ہم خاص پاک بنے، وہ خاص جو دن ہے جب ہم خوشی مناتے ہیں یا یہ عید جو ہے منائیں، تو آپ ضرور اگر میں بھول جاؤں آپ کو یاد کرانا، تو کسی کو اگر یاد رہے تو ضرور ہم کرسمس پہ اور اس پہ ایسٹر پہ روزہ رکھیں گے۔ تو اس لیے یہ ہم عید اس طرح اب مناتے ہیں۔ اگر نہیں مناتے، مطلب اگر گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح روز ہی آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خداوند کی اس عید کو نہیں منا رہے، ہم تو بھی گناہ میں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے روز ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عید کو منائیں، تو روز ہی اپنے گناہوں کی جو معافی ہے وہ مانگے، خدا یسوع مسیح کے خون سے دھوئیں، اپنے آپ کو پاک صاف کریں، ہے نا۔ تو ہم جو ہے یہ عید اس طرح مناتے ہیں، خدا یسوع کے گناہوں کی جب اپنی معافی مانگتے ہیں۔ اور پھر خدا نے کہا کہ یہ جو جو تمبوؤں کی عید ہے، جو خدا نے کہا کہ بیابان میں یا جب وہ تھے ریگستان اس میں تھے، تو اس کی بھی عید منانا، تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ ہم جو تھے خدا نے بیابان میں کیسے ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کیا، اور ہمیں اور یہ خدا نے کہا کہ تم تمبوؤں کا محل سب کو ہی پتا ہے نا، جھونپڑیاں جیسی بار بناتے تھے، اور اس کے اوپر وہ درختوں کی جو کھجوروں کی ڈالیاں یا یہ سب کچھ رکھتے تھے، ہے نا۔ تو اس لیے اس عید کو اب ہم اس طرح منائیں گے جب 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ عید جو ہے، جو تمبوؤں کی عید ہے، جو اسرائیلی قوم مناتی ہے، کہ وہ آج بھی جیسے کہ اپنے گھروں کے باہر ہی یا ایسے کوئی گراؤنڈ یا اس میں جاتے ہیں، اور یعنی جو تمبو ہے یا ٹینٹ جو ہے وہ لگاتے ہیں، اور اس کو درختوں کی جیسے کہ شاخیں یا یہ وہ کرتے ہیں، ہے نا۔ تو اس لیے ہم جو ہیں جب 1000 سالہ بادشاہی ہوگی، جب اس میں داخل ہوں گے، تو اب ہم اس عید کو اس طرح منائیں گے۔ خداوند کیا لیں کہ یسوع مسیح کی عید، اگر ہم اس کو مکاشفہ کی کتاب نکالنا انجنا، اس کے 21 چیپٹر اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں کیا ہوگا، تب کیا ہوگا، خداوند کا خیمہ جو ہے آدمیوں کے درمیان ہوگا، تو وہاں کیا ہوگی، سکونت ہوگی وہاں۔ تو اس لیے ہم اس عید کو اب اس طرح منائیں گے۔ 21 چیپٹر हाँ जी मिल गया। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਕਿ ਵੇਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਆਮੀਨ। آمین۔ ہاں، تو خداوند کیا ہے، خداوند کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا، اور ہم اس عید کو جب خداوند کہہ لیں ہمارے درمیان ہوگا، جس طرح تب بھی کیا تھا خیمہ اجتماع میں، آپ سب کو یاد ہوگا کہ خداوند نے کیا کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان رہتا ہوں۔ یہ خیمہ اجتماع جو تھا، خداوند نے کہا کہ میں تمہارے درمیان رہتا ہوں۔ تو تب بھی کیا ہوگا، جب 1000 سالہ بادشاہی ہوگی، تب بھی کیا ہوگا، خداوند کا جو خیمہ ہے یا خداوند کا جو گھر ہے یا خداوند کا جو تخت ہے، وہ ہمارے درمیان لگا ہوگا، اور ہم اس کو منائیں گے۔ اور اب ہم اس کو اس طرح بھی مناتے ہیں کہ خداوند کیا ہے، ہم خدا کی ہیکل ہیں، یا ہم خدا کا وہ خیمہ ہے، ہم خداوند یسوع مسیح کے، یا خداوند یسوع مسیح نے جو ہمارا دل ہے اس کا تخت ہے نا، تو وہ ہمارے درمیان رہتا ہے، وہ ہمارے دل میں رہتا ہے۔ تو اس طرح بھی یہ پورا ہو رہا ہے۔ تو اسرائیلی قوم کے لیے جو فزیکلی ہے، مطلب روحانی جسمانی طور پہ اس طرح پورا ہوگا کہ اسرائیلی قوم جو ہے جب 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہوں گے، جب خدا یسوع مسیح بادلوں پہ، خدا یسوع مسیح اپنی دلہن کے ساتھ واپس آئے گا،
तो क्या होगा, जो यरूशलेम है उस जगह पे खुदावंद जो उसका तख्त वो वहां पे लगेगा, और खुदावंद यीशु मसीह जो है 1000 साल तक जमीन पे बादशाही करेगा। और खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन और इसराइली कौम जो है, जो बचे हुए होंगे, है ना, जो और पुराने ऐहदनामे के जो मुकद्दसीन होंगे, जो मुकद्दस लोग होंगे, जो पाक लोग होंगे, जो नबी थे, है ना, वो उसमें दाखिल होंगे, है ना। सारी इस्राएल कौम नहीं, लेकिन जो मुकद्दस लोग होंगे वो उसमें दाखिल होगी। और हमारे भी जो नए ऐहदनामे के हैं, वो भी खुदावंद यीशु मसीह की जो दुल्हन है और जो शहीद होंगे, वो लोग वहां पे होंगे इस 1000 साल बादशाही में, है ना। तो इसलिए ये जो खैमों की ईद वो मनाते हैं, वो आके 1000 साल बादशाही में ये ईद जो है वो पूरी हो जाएगी। और हम इसको अब इस तरह भी मना रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, हमारे दिल में रहता है। हम कहते हैं कि जी ये दिल जो है या हमारा बदन जो है उसकी हैकल है, या उसका अ, खैमा जो है उसका, या उसका तख्त जो है हमारे दरमियान या हमारे दिल में लगा हुआ है। तो इसलिए ये जो खैमों की ईद है उसको भी हम इस तरह मना रहे हैं, रूहानी तौर पे और फिजिकली तौर पे, जिस्मानी तौर पे। हम जब 1000 साल बादशाही में दाखिल होंगे तो फिर इसको मनाएंगे। और एक हवाला जो है अंजना निकालना, पहला ग्रंथियों 5 और 5 बाब। वर्स बचे 7। ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਜਰੀ ਧੌਣ ਬਣੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਲੇਲਾ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਬਲਿਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ। नेक्स्ट भी पढ़ना। हाँ जी, नहीं उसके बाद आप पढ़ना 11 बाब इसी का चैप्टर था। हाँ जी हाँ जी। और उसकी वर्स 23 है 23। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਹ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਕਿਆ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। हाँ मीन जी, हाँ, यानी अब हमारा जो बदन है वही हैकल है, और वही खुदावंद यीशु मसीह के, खुदावंद पाक रूह के, खुदावंद बाप के रहने की जगह है। जिस तरह ये 1000 साल बादशाही में होगा कि खुदावंद क्या है, खुदावंद का ख़ैमा जो है आदमियों के दरमियान लगेगा, है ना, खुदावंद यीशु मसीह का ख़ैमा। तो इसी तरह अब क्या है, हम जो इंसान है हमारे दरमियान खुदावंद जो है आके रहता है। और ये देखिए कितनी हमारे लिए बड़ी बात है, या कह लें इज्जत की, ऑनर की बात है कि वो खुदावंदों का खुदा, वो बादशाहों का बादशाह, है ना। और वो पाक खुदा वो कहता है कि ये जो हमारा बदन है ये हैकल है, और वो कहाँ रहता है, हमारे अंदर आके रहता है। तो इसलिए हमारे लिए, हमें तो, मैं कह रही हूँ कि हर वक्त खुश और नाचते गाते रहना चाहिए, है ना, खुशी मनानी चाहिए। जिस तरह इसराइली कौम जो थी जब ये तंबू की ईद या ये मनाती थी तो वो खुशी मनाती थी। या जैसे जब खुदावंद यीशु मसीह आपको याद होगा कि जब उसमें दाखिल हुआ था हैकल में, जब डालियां और कपड़े बिछाए जा रहे थे कि बादशाह आ रहा है, होशाना होशाना, है ना। तो क्या हो रहे थे, इस्राएली कौम खुश हो रही थी। तो हमें भी हर वक्त, क्योंकि वो तो हमारे अंदर रह रहा है, तो हमें ये जो खुशी है ये हर वक्त ही मनानी चाहिए। ये ईद जो है ये हर वक्त ही आ, हमें मनाते रहना चाहिए, क्योंकि खुदावंद क्या है, अब हमारे अंदर रहता है। तो ये खैमों की जो क्या लें ईद है, वो हम, मैं कहूँगी कि हम तो रोज ही मनाते हैं, है ना। तो इसलिए ये 7 ईदें जो हैं इस तरह आके मसीह में कह लें कि सारी ही पूरी हो जाती हैं। खुदावंद यीशु मसीह में आके ये सारी ईदें हम मना रहे हैं कुछ, और कुछ जो हैं हम
उसकी खुशी कर रहे हैं अभी से, क्योंकि हमें उम्मीद है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आना है और उसने हमें बादलों पे उठा के ले जाना है ना। तो इसलिए ये रैप्चर की जो ईद है वो भी हुई नहीं है, लेकिन हम अभी से खुशी मनाते हैं। हम जैसे उसको मना रहे हैं, है ना, यानी खुश हो रहे हैं। हमें उम्मीद है, हमें तसल्ली है कि हमारा जो खुदावंद यीशु मसीह हमारा दूल्हा है वो हमें आके ले जाने वाला है ना। और ये जो कफारे की ईद है उसको भी हम मना रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा सारा जो गुनाहों का कफारा है वो दे दिया है। तो इसलिए हमें अब जो माफी है, गुनाहों की माफी जो है वो मसीह में जब हम आते हैं तो हमें मिल जाती है। या हम रोज रोज जो गुनाह करते हैं, खताएं करते हैं, वो यीशु के खून से हम धुल रहे हैं, पाक साफ हो रहे हैं। तो हम इसको ईद को भी कह लें कि हम मना रहे हैं। और ये जो तंबुओं की ईद है, जो खैमों की ईद है, उसको भी हम कह लें खुश हो रहे हैं या मना रहे हैं अभी। और पूरी जो जिस्मानी तौर पे जैसे कह लें कि ये तीनों जो हैं, यानी नरसिंगे फूंके जाने की, और ये जो कफारे की ईद है, और तंबुओं की, ये जाके 1000 साला बादशाही में पूरी जैसे कह लें होगी। लेकिन अभी ये हम इसको रूहानी तौर पे उसको मना रहे हैं, है ना। तो बाकी भी जो 4 ईदें हैं वो कह लें हमारी जिंदगी में, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात देंदा कबूल कर लिया है, जो उसके वसीला से उस पाक शराकत में शरीक हो रहा है, उसको शिफा मिल रही है ना, और रिहाई मिल रही है, वो बेखमीरी रोटी की भी ईद जो है मना रहा है ना। और खुदावंद यीशु मसीह क्या है, हमारा पहला फल है। तो वो भी हम मनाते हैं, खुश होते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पहला फल है ना। और हम भी क्या होंगे, पहले फल होंगे। और ये ईद पेंतिकोस्त भी हम मना रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो वादा किया था उसने हमें अपने पाक रूह से भर दिया, और अब हम क्या है, उसकी दुल्हन जो कह लें बन गई है, या उसका चर्च जो है, उसकी कलीसिया जो है उसमें शामिल हो गए हैं, है ना। तो इसलिए ये सारी ईदें जो साथ हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह में आके कह लें, मैं उर्दू में कहते हैं पिन्हा, यानी उसमें सब कुछ समा गया है। उस एक खुदावंद यीशु मसीह में ये सारी ईदें जो इसराइल मनाती है, उनको इन ईदों की उस तरह से पता नहीं है जिस तरह हमें पता है। जिस तरह हमने इब्रानियों के खत में अगर हम पढ़ें, तो लिखा है कि पुराना ऐतनामा जो है वो नए ऐतनामे का पुराना ऐतनामा जो है नए ऐतनामे का साया है। यानी जो कुछ भी पीछे हुआ है पुराने ऐतनामे में, वो फिजिकली हुआ है, यानी जिस्मानी तौर पे, और अब वो सब कुछ हम रूहानी तौर पे कर रहे हैं या करेंगे, है ना। तो इसलिए ये पुराने ऐतनामे में जो भी ईदें मनाते थे, वो अब रूहानी तौर पे हम कर रहे हैं या करेंगे। तो इसलिए ये मनाना जो है ये इसीलिए ज़रूरी है, जो इस्राएली कौम जो थी, को खुदावंद ने कहा था, इसीलिए खुदावंद ने कहा था, ये महल हमने ख़ुरूज की किताब में पढ़ा था, खुदावंद ने कहा था ये दायमी है, ये अबदी है, ये कभी ख़त्म होने वाली ईदें नहीं हैं। ये 1000 साला बादशाही में जाके हम इसके बारे में, जो बनी इसराइल कौम है, जो यहूदी होंगे, वो जब कुर्बानियाँ दे रहे होंगे तो हम उनको बताएँगे, सिखाएँगे कि ये कुर्बानियाँ आके खुदावंद यीशु मसीह में पूरी हो गई हैं। तो ये हम उनको समझाएँगे। उनको इस बारे में नहीं पता, लेकिन हम उनको बताएँगे कि ये जो कुर्बानियाँ हैं, ये आके मसीह में सब पूरी हो गई, है ना? तो इसलिए ये हमें सबको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम चल के ये इस्तिस्ना खत्म होगा, तो हम थोड़ी स्टडी शुरू करेंगे, और आप देखेंगे कि कौन-कौन से उसमें, यानी जो शहीद होंगे उनका क्या काम है, जो दुल्हन है 1000 साल बादशाही में उनका क्या काम है। तो इसलिए हम जो हैं एज़ ए अगर दुल्हन अ जिंदा आसमान पे उठाए जाते हैं या मर जाते हैं, तो जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा मुड़ तो हम जिंदा होंगे, या हम खुदावंद यीशु मसीह की खातिर जान देते हैं और हम शहीद हो जाते हैं, तो तब भी हमें ये सारी बातें पता होना चाहिए, ताकि जब 1000 साल बादशाही में हम जाएं तो हम जो मसीही हैं
उनको ये पता हो, ताकि हम उनको सिखा सकें, बता सकें, है ना? तो इसलिए ये जो सारा फसे का या ये सारा कुछ हमने सीखा, ये खुदावंद यीशु मसीह में आके पूरा हो जाता है। हमारा सरदार कान खुदावंद यीशु मसीह है ना? और ये तंबुओं की, जैसे ये वो ईद मनाते थे, तो हम जो हैं मसीह में आके अब हमारा बदन ही जो कह लें, ये पूरा एक हैकल या पूरा वो खैमा इज्तिमा जो है बन गया है ना? तो खुदावंद आप सबको फजल दे कि हम इस जो सरदार काहिन था, उसकी मानिंद जिस तरह वो अपने आप को पाक साफ करता था पूरा साल, और तब जाके अहद के संदूक के ऊपर बर्रे के देखें ये खून लगा रहा है और ये अंदर जाया करता था, है ना? तो जिस तरह इसकी तैयारी थी, बिल्कुल उसी तरह हमारी तैयारी हमने जो दुल्हन है उसने करनी है। हमारी तैयारी इसीलिए आम जो मसीही हैं उनसे फ़र्क है। देखिए जिस तरह ये सरदार काहिन की तैयारी पूरी बनी इस्राएल कौम जो थी उससे फ़र्क होती थी। बनी इस्राएल कौम जो ये सरदार काहिन सब कुछ करता था, वो नहीं ये करती थी। तो इसी तरह हम जो दुल्हन हैं उसने ये सब कुछ करना है। बाकी आप मसीही इधर-उधर देखते यार उन्हें ते ना कीता वो ते गुनाह च ज़िंदगी गुज़ारे वो फिर भी कितना, है ना? दूसरों को ना देखना। अगर आप चाहते हैं वैसा बनना तो फिर आप आम मसीही हैं जिनकी सिर्फ़ कह लें रूहें बचनी हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस सरदार काहिन की तरह तैयारी और उस पाक दामन कँवारी की मानिंद तैयार होना, तो फिर खुदावंद के हुक्मों पे जो-जो वो कहता है कलाम खुदावंद का, उस पे पूरा-पूरा अमल करना आपको पड़ेगा। क्योंकि खुदावंद जो है वो ऐसे ही हमें नहीं ले जाएगा। उसने पर्दा ज़रूर फट गया है। लेकिन अगर नया नामा हम जावेद के साथ पढ़ रहे हैं, तो आप आगे-आगे देखेंगे कि तैयारी जो थी वो चेंज नहीं हुई। पर्दा जो है कल का फट गया कि अब सभी जा सकते हैं, तब सिर्फ सरदार खाइन जाता था और कोई उसके बेटे भी नहीं अंदर जा सकते थे, है ना? तो लेकिन अब क्या है, खुदावंद यीशु मसीह की वजह से वो पर्दा बीच में से हट गया है, लेकिन तैयारी जो है वो तब्दील नहीं हुई कि हम गुनाहगारी हैं, तो हम उस जगह चले जाएँगे। क्योंकि तब भी लिखा था कि अंदर काहिन जाता था, तो अगर उसकी ज़िंदगी में गुनाह होता था, तो वो मर जाता था। तो नए अहद में भी हम पढ़ते हैं कि अगर गुनाह हमारी ज़िंदगी में है, तो हम मौत की तरफ जा रहे हैं, हम ज़िंदगी की तरफ नहीं जा रहे हैं, है ना? तो इसलिए तैयारी तब्दील नहीं हुई। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी फ़ज़ल दे कि हम उस पाक दामन कँवारी की माने तैयार हों, और जो-जो खुदावंद का कलाम, खुदावंद के हुक्म हमें मिलते हैं, उस पे फर्माबरदारी से, ताबेदारी से अमल करें। तो बैक टू सुमीना अगर है तो। हाँ जी, हाँ जी। गॉड ब्लेस यू जी। बहुत खूबसूरत कलाम था। खुदा आपको बरकत दे। क्लोजिंग प्रेयर। अब हम क्लोजिंग प्रेयर की तरफ जाते हैं। अंजना की है मेरा ख़्याल। अंजना की? हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्लोजिंग प्रेयर हाँ आप जी, मेरी है। ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड खुदावंद पिता। परमेश्वर तेरा शुक्र ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਦ ਔਰ ਅੰਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। जो भी आज खुदावन खुदा ये बीज बोझा है खुदावन खुदा, ये 30 गुणा नहीं बल्कि ना 60 गुणा खुदावन खुदा 100 गुणा साडी जिंदगी दे विच फल लेके आवे मेरे परमेश्वर खुदावन खुदा। साडी जिंदगी खुदावन खुदा तेरे मुताबिक होवे, तेरे कलाम दे मुताबिक होवे खुदावन खुदा। तू सानू तैयार कर खुदावन खुदा कि ਅਸੀਂ तेरे हुक्मां नु मान सकीए, तेरे हुक्मां ते चल सकीए खुदावन खुदा। तू सानू पाक कर, तू सानू पवित्र कर खुदावन खुदा। साडे उत्ते कोई भी किसी तरह दी कोई दाग ना होवे, कोई चुरड़ी ना होवे, कोई भी तब्बा ना होवे खुदा
ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਵਾਚੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਫ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਬਣਾ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਵਾਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਚਾਹੇ ਸੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਈਏ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ तेरा कलाम हमेशा लिए चलता रहे परमेश्वर मेरे प्यारे पिता मैं तेरा शुक्र करदी खुदावंद खुदा साडी जिंदगी मेरे प्यारे परमेश्वर तेरे मुताबिक ਅਸੀਂ अपना जीवन व्यतीत करिए साडा उठना बैठना चलना फिरना मेरे परमेश्वर प्यारे पिता तेरे ही मुताबिक होवे खुदावंद खुदा तो सानू पूरी तरह तब्दील कर यस लॉर्ड मेरे प्यारे पिता खुदावंद खुदा ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀਏ यस लॉर्ड खुदावंद खुदा जो भी सानू देखे परमेश्वर मेरे प्यारे पिता ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ खुदावंद खुदा ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ आओ यस लॉर्ड सारे काम खुदावंद खुदा सारे काम में मसीही वर्गे होण यस लॉर्ड मेरे प्यारे पिता यस लॉर्ड खुदावंद तू सानू निखार यीशु जी खुदावंद खुदा तू सानू होर भी ज्यादा मजबूत कर मैं तेरा शुक्र करदी हां खुदावंद खुदा मेरे प्यारे पिता ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਯਸ ਲॉर्ड ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆਪ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਯਸ ਲॉर्ड ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਯਸ ਲॉर्ड ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਯਸ ਲॉर्ड ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਯਸ ਲॉर्ड ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਵਜੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ खुदावंद खुदा अगर कोई भी बीमार है यस लॉर्ड खुदावंद खुदा ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਨੀਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਯਸ ਲॉर्ड ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਯਸ ਲॉर्ड ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਕੇ ਯਸ ਲॉर्ड ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ
ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਵੇ यीशु ਯੈਸ मसीह ਲਾਰਡ ਤੂੰ के ਆਪਣੀ नाम ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਰਬੁਲੰਦ ਕਰ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ यस ਖੁਦਾ लॉर्ड ਅਸੀਂ ਰੋਮਾ ਸਿਸਟਰ ਲਈ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਾਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਾਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਾਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਸ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗ ਲਾਨੀ ਹੈ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਬੱਦਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਬਾਦਲ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਰਬੁਲੰਦ ਕਰ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਗਏ ਉਹ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਯੈਸ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਮੀਨਾ ਸਿਸਟਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਮੀਨਾ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾ ਦੇ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਸਮੀਨਾ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਨ ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਬਹੁਤ ਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਯਿਸੂ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮਾਇਆ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੀ ਨਸ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜੋ ਵੀ ਬੀਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੂੰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਰਸਤੇ ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦ ਹੋਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਰੂਸਾ ਸਿਸਟਰ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮਹਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿਸਟਰ ਲਈ ਨਾਇਲਾ ਸਿਸਟਰ ਲਈ ਸਰਾਫਿਨ ਸਿਸਟਰ ਲਈ ਵਫਾ ਸਿਸਟਰ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੀਲਮ ਸਿਸਟਰ ਲਈ ਸਮਰੀਨ ਦੀ ਗੁਣਾ ਲਈ ਸੁਰੇਆ ਸੈਡਰਿਕ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਔਰ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਯਿਸੂ ਜੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਤੋਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ
ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਬਲਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਓ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਰਬੁਲੰਦ ਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਚਲਾਇਆ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆਮੀਨ आमीन आमीन। 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 अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। अब ईमान से जिस किसी ने पानी रखा हुआ है वो उस पानी को पिए और रोटी अगर रखी है तो वो खुदा यीशु मसीह की उस बदन को लें। आपको आप ईमान रखें, आपको उससे शिफा मिलेगी। कोई भी बीमारी है या कुछ घर में परेशानी है, फाइनेंस की है या कोई भी है, आप उस रोटी को लेंगे, उस पानी को पिएंगे जो खुदा यीशु मसीह के लहू में तब्दील हो गई है। वो आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी के लिए काफी है। जो खुदा यीशु मसीह का लहू है और रोटी है, तो जरूर उसके ईमान से लें। और आज मैंने देखा है कि खुदावन ने हमें ऐसे मैंने देखा जैसे ग्रुप की सूरत में है और एक वाइट चादर है, जिस तरह उसके ये जो खामा इज्तिमा है उसके ऊपर कोई छत नहीं थी डाली गई, उसके ऊपर चादरें जो थी हमने पीछे तंबू थे ना। हाँ, तो वो चादरें जैसी डाली गई थी, खुदावन ने कहा था। तो मैंने देखा है कि वो चादर जो है वाइट चादर है और उसके साइडों पे जैसे ये इनकी जो यहूदियों की प्रेयर शॉल है, इस तरह की जो शॉल है उसके डोरियां जैसी बनी हुई हैं। तो वो जो शाल है वो ऐसे मैंने देखा है कि जैसे सर्कल में हम हैं, तो वो हमारे सर के ऊपर खुदावंद ने ना डाली है वो शॉल जो है, प्रेयर शॉल जो है जो। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने हम सबको यानी एक जैसे कह लें हम हैं भी प्रेयर वॉरियर ही हैं, तो खुदावंद ने और ज्यादा मैं कहूँगी कि दुआ का जो मसा है आज हमें दिया है कि हम दुआ और रोजे में ठहरें। क्योंकि जब भी हम जिस तरह इसराइली कौम दुआ में रोजे में ठहरती थी, तो उनकी खुद ही जैसे मैं कहूँगी कि खुदावंद उनको उभारता था या गाइड करता था खुदावंद कि वो तौबा करें, माफी मांगे, वो गुनाह में रह नहीं सकते थे। तो इसी तरह खुदावंद ने हमें वो मसा दिया है कि हम दुआ और रोजे में ठहरें, तो हमारी जिंदगियों से ये जो गुनाह है, गंदगी है वो पाक साफ होती जाएगी। और फिर मैंने माया के लिए देखा है कि जैसे माया है हमारे साथ, कि जैसे मैंने इसके सर को देखा है, इसका जो सर है यानी अंदर का हिस्सा वो बिल्कुल ऐसे जैसे काला है, ऐसे कोई रोशनी नहीं है, अंधेरा है। लेकिन इसके माथे पे मैंने ऐसे देखा जैसे कोई जैसे जो क्या उसको बोलते हैं, क्राउन जैसा कुछ पहनते हैं, लेकिन वो सिर्फ माथे पे मुझे उसको पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन इसने ना वो पहना हुआ है और वो लाइक सिल्वर जैसे का है, यानी प्योर व्हाइट नहीं है, लेकिन वो उस तरह का थोड़ा सा उसका कलर है, वो पहना हुआ। और वो जो इसने पहना है, पता नहीं इसने वाकई इसके घर में है या नहीं, लेकिन वो पता नहीं रूहानी तौर पे है, लेकिन वो चीज जो है इसने इसके जहन को कंट्रोल किया हुआ है। वो अंदर से ऐसे जैसे उसमें अंधेरा है, कोई उम्मीद जैसा होता है या कोई सब कुछ ऐसे जैसे उसने खत्म कर दिया है, लेकिन वो जो कुछ उसने ऐसे बांधा हुआ है। लेकिन मैंने देखा है कि जिस तरह अंजना प्रेयर करती जा रही थी, तो मैंने ऐसे देखा कि जैसे ऊपर से रोशनी आई है, रोशनी इस तरह आई है लिक्विड की सूरत में और पानी की कह लें सूरत में, तो वो इसके ऊपर गिर रही है आबशार के इसके सर के ऊपर। और इसका सर जो है वो जो मैं सारा काला काला नजर आ रहा था, और एक
जैसे कुआं होता है ना, गड्ढे की तरह, इस तरह नजर आ रहा था। तो वो बढ़ता जा रहा है और वो रोशनी जो है आसमान से आई है, तो वो रोशनी इसके अंदर बढ़ती जा रही है। तो खुदावंद ने माया आपको टच किया है, लेकिन आप चेक करना कि कोई घर में ऐसी चीज तो नहीं जो आपने अपने सर पे लगाई थी, जैसे कोई ऐसे होते हैं आर्टिफिशियल वगैरह, क्या कहते हैं, जेवर वगैरह जो पहन लेते हैं, तो उस पे कोई असर था जिसने आपके उसको जहन को जैसे कहले कंट्रोल कर लिया गया। ना तो आपसे दुआ हो रही है, ना मतलब नींद आ रही है। तो जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कोई असर था, तो आप जरूर चेक करना। लेकिन खुदावंद ने आपको टच किया है, खुदावंद ने आपको छुआ है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि कहीं कुछ हमने कुछ किया तो नहीं है, ऐसा कुछ पहन तो नहीं लिया। तो वो कुछ शाइनिंग जैसी चीज है जो आपने शायद पहनी थी, तो उस पे असर था। जैसे होता है ना, किसी ने कुछ किया या कुछ वो इस तरह, तो आपने ऐसे शायद लगाने के लिए शायद आपने पहनी नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि आपके माथे के ऊपर है और उसने आपको जकड़ा हुआ है। लेकिन खुदावंद ने आपको टच किया, खुदावंद आपको शफा उसने दे दी है। और खुदावंद हालेलुया। जो है जो भी आपकी इस वक्त प्रॉब्लम है, आप में से दुआ नहीं हो रही, आपको नींद नहीं आ रही या बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा, खुदावंद यीशु मसीह ने, आप हमने स्टडी में सीखा था माया, कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो कांटों का ताज रखने के वसीला से वो खून बहाया था, वो उस लहू के वसीला से आपको मुकम्मल शिफा जो है मिल गई है। अब आपको खुदावंद जो है इसमें पड़ा नहीं रहने देगा। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है खुदावंद ने उसको हल कर दिया, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हाँ जी, प्रेज़ द हाँ लॉर्ड। जी। और भी अगर किसी को खुदावंद ने कुछ दिखाया है या टच किया है तो वो शेयर कर सकता है। और प्रेज द लॉर्ड। ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਰਕ। हम्म ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਆਈਜ਼ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ हम्म ਜ਼ਿਆਦਾ हम्म ਅੰਧੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਡਾਰਕ। ਹਾਂਜੀ। हाँ, तो किसी ने ना ऐसे जैसे कुछ कंट्रोल किया इसके ज़हन को, तो अंधेरा अंधेरा मैंने भी देखा है। लेकिन ये मैंने देखा है कि साथ ही रोशनी जो है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमें ऐसे नहीं रहने देता। हम उसकी दुल्हन है, वो माया आपको इस तरह नहीं रहने देगा। इसके पीछे भी कोई वजह होगी, वो खुदावंद आपको समझाएगा, बताएगा, है ना। तो ये क्यों आजमाइश जो है आई है, तो लेकिन खुदा ने आपको शिफा जो है वो दे दी है। गॉड ब्लेस यू आमीन। जी। अगर आमीन। किसी और को कुछ कुछ नजर आया है या कुछ कहना चाहता है, नहीं तो हम फिर मीटिंग को बंद हुँ। करें। ओके जी, ठीक है, नहीं आया है। चलो ठीक है जी, फिर गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। गॉड ब्लेस